Good morning, class. Today we are starting with our chapter number 7, that is conservation of plants and animals. We show in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with the Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary and some others had heard about the Kaziranga National Park, Lucknow Wildlife Sanctuary, Great निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व एंड टाइगर रिज़र्व एट्सेट्रा। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेस्ट में गए थे और उनका एक्सपीरियंस जो था वो बाकी के क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या? फॉरेस्ट मतलब जंगल, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को ख़त्म करना। जंगल कब ख़त्म होंगे? जब हम लोग पेड़ काटते जाएंगे, राइट। तो ज़्यादातर पेड़ काटते जाएंगे तो ज़मीन खुली होती जाएगी, तो जानवर रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, राइट। पक्षियों के लिए जगह नहीं बचेगी और खुले मैदान में तो कोई जानवर रहेगा नहीं, तो फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्ट हो जाएगा। और उसकी क्या असर होती है, कॉसेस, राइट। A great variety of plants and animals exist on the earth. They are essential for the well-being and the survival of the mankind. Today, the major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that the deforestation means clearing of the forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. Trees को लोग क्यों काटते हैं? फॉर प्रोक्योरिंग द लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन चाहिए, इसलिए अनवांटेड या अनसिस्टमाइज्ड पेड़ जो होते हैं उसको काट डालते हैं। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, मकान बनाने हैं या फैक्ट्रियाँ बनानी है तो भी काट डालते हैं पेड़ों को। फिर दूसरा, मेकिंग फर्नीचर और यूज़ वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ा चाहिए और कोई लोग घर में खाना बनाने के लिए उसको फ्यूल की तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. कभी कभी क्या होता है कि अकाल पड़ता है, बारिश नहीं पड़ती और जंगल में आग भी लगती है, तो इसकी वजह से भी पेड़ कट जाते हैं, राइट। तो ये भी एक रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्टिविटी 7.1. Add more causes for deforestation to your list and classify them into natural and man-made. तो और भी रीज़न्स हो सकते हैं, अगर आपको दिमाग में आते हैं तो आप उसको ऐड करके लिखो और देखो कि वो नेचुरल है या मैन मेड है, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो जाने के बाद उसके प्रभाव क्या पड़ता है। Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that the deforestation disturbs the balance in the nature, and they were told by the Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Recall that the plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased population amount in the atmosphere. This will lead to the global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth, and the increase in the temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce the rainfall. This causes the droughts.
Deforestation is a major cause which leads to the change in the soil properties. Physical properties of the soil gets affected by plantation and vegetation. Recall from the class 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts, and it is called the desertification. Deforestation also leads to the decrease in water holding capacity of the soil and the movement of water from the soil surface into the ground, that is infiltration rate is reduced. So there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture is also changed because of the deforestation. We have studied in class 7 that we get many products from the forest. List these products. We will face shortage of these products if we continue टू कट द ट्रीज. तो अभी देखो सिर्फ एक पेड़ को काट डालते हैं तो नेचर में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस किस किस प्रकार से और कितने कितने प्राणियों को असर करती है. सबसे पहले तो क्या होगा कि फॉरेस्ट अगर कट जाएंगे, राइट, पेड़ काट डालेंगे हम लोग, तो जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जानवर सीधे सीधे इंसानी बस्ती की तरफ आ जाएंगे, राइट. फिर हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. ओके, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, सूरज की गर्मी जो होती है, रेज जो होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रैप हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी और पृथ्वी का वातावरण बढ़ जाएगा. जब पृथ्वी का वातावरण बढ़ जाएगा तो पोलर रीजन्स में जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, राइट, और बहुत सारा पानी आएगा और बहेगा तो समुंदर में, लेकिन बहते हुए जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी. बहुत सारी ऐसे दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको प्लांट्स में से मिलती हैं. तो जब अब ट्री काट डालेंगे तो वो चीज़ें भी मिलना बंद हो जाएगी हमें, ठीक है. पेड़ जब कट जाएंगे, राइट, तो उनकी एक खासियत होती है, वो पानी को, सॉइल को जो है ना वो पोरस रखते हैं, राइट. तो जैसे ही बारिश का पानी जाता है वो पानी ज़मीन के नीचे उतरता है. जहाँ पर बारिश पेड़ नहीं होंगे वो पानी बह जाएगा, राइट. तो पानी जो नीचे ज़मीन में उतरता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. तो पानी जब ज़मीन में नीचे नहीं उतरेगा, ग्राउंड लेवल का पानी, अंडरग्राउंड वाटर जब कम होने लगेगा तो ऊपर का ज़मीन जो है वो डेजर्ट होने लगेगी, है ना, रेती रेती, रण विस्तार बढ़ता जाएगा, राइट. और पेड़ नहीं होंगे, ये हमें पता है कि वो बारिश को खींचने का काम करते हैं. बारिश आती है, पेड़ होते हैं जहाँ पर, तो पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी कम आएगी, राइट. तो एक तो डेजर्ट होने लगेगा, बारिश नहीं आएगी तो सूखा भी पड़ने लगेगा. और ज़मीन की जो फिज़िकल सॉइल की जो टेक्सचर होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं, वो भी लूज़ होते जाएंगे. तो एक पेड़ हमको कितनी तरीके से इफ़ेक्ट करता है, राइट. तो इसीलिए तो बोला जाता है कि जितना हो सके उतना पेड़ों को उगाओ, काटो मत, क्योंकि काटने में हो सकता है एक दिन लगे तुम्हें या आधा घंटा लगे, लेकिन उगाने में उसको बरसों लग जाते हैं, है ना. तो अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ उगाने चाहिए कहीं पर. ये हमारा एक मोटो होना चाहिए, तभी तो पृथ्वी पे हम बैलेंस बना के रख सकते हैं. नहीं तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वातावरण का बैलेंस बिगड़ जाएगा और इंसान, जानवर, पक्षी सबको जीने के लिए मुश्किल हो जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब बचाते हैं कैसे जंगल को और वाइल्ड लाइफ को. Having become aware of the effect of the deforestation, Paheli and Bucho are worried. They go to Professor Ahmed and ask how forest and wildlife can be saved. अभी wildlife और forest को कैसे बचाया जाए. Professor Ahmed organizes a visit to the Biosphere Reserve for the Paheli Bucho and their classmate. उनके लिए एक विज़िट रखते हैं, कहाँ पर, Biosphere Reserve करके. He selects a place named
Panchmari Biosphere Reserve, he knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. तो यहाँ के जो पेड़ पौधे और वन्य जीव जो हैं वो सिमिलरली हिमालय के वेस्टर्न घाट्स जो है उसके जैसे ही हैं, राइट. ही रिक्वेस्ट द माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय जो फॉरेस्ट में काम करता है, उसको टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. वो बोलते हैं कि बच्चों को हमको गाइड करो क्या क्या प्लांट्स है, कैसे हैं वो सब उसके लिए. ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक्स देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होते हैं जिसके, उसको बचाए रखना एक हमारे देश के हेरिटेज में आता है, नेशनल हेरिटेज है वो. माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. The government lays down the rules, methods and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for the conservation of plants and animals present in that area. अभी क्या होता है कि हम सब के साझा एफर्ट्स होते हैं, राइट. और साथ साथ गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे लॉज बनाती है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कोई इंसान नहीं जा सकता, और अगर जाता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वहाँ पर वो कोई भी एक्टिविटी जैसे कि पेड़ काटना या जानवर मारना, ऐसा कोई काम वो नहीं कर सकता. अगर वो करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलती है. जैसे इंसान को मारने की सज़ा मिलती है, वैसे ही जानवर को मारने की भी सज़ा मिलेगी, राइट. To protect the flora and fauna and their habitats, protected area called the wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been embarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching and prohibited here. तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ करना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आपको जाना ही अलाउड नहीं होगा कि आपकी एक्टिविटी की वजह से कोई वाइल्ड लाइफ वहाँ की जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. नेशनल पार्क्स एरियाज़ रिजर्व्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitats and natural resources. And biosphere reserve क्या होता है कि large area of protected land होता है for the conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in the area. तो जो ट्राइब्स जंगली तो नहीं, लेकिन जो जंगल की जीवन शैली जिसकी होती है, ऐसे ट्राइब्स को भी वहाँ रहने को मिलता है ताकि वो लोगों को भी जंगल छोड़ के जाना ना पड़े. बायोस्फीयर रिजर्व क्या था? चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद माधव जी एंटर्ड द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. माधव जी एक्सप्लेन दैट द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायो मतलब लिविंग लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब उसमें विविधता. तो बहुत सारी वेराइटी के जीव वहाँ पर रहते हैं. As you are aware that the biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named the Satpura and two wildlife sanctuaries named the Bori and Panchmari. तो यहाँ पर वो दो जगह है जिसका नाम है पंचमरी एंड बोरी. ये नक्शा है कहाँ पर आया है वो, ठीक है. पंचमरी सेंचुरी टू पिपियारा गेट एंड पंचमरी, देखो पूरा ग्रीन कलर का है वो. पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. फ्लोरा एंड फाउना यानी कि पेड़ पौधे और फूल, राइट. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स दे appreciated the
green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly Perry finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. And Madhavji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed the flora and fauna respectively for that area. तो जंगल में कुछ एक विस्तार में ये लोग जब घूम रहे थे तो पहली ने देखा कि एक रैबिट जो था वो घूम रहा था। तो पहली उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो उसको प्रोफेसर अहमद रोकते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को जैसे इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली हुई है जीने के लिए, उसी तरह जानवरों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, अपने तरीके से रह सके वो। हम उसको पकड़ के बांध के रखते हैं, वो गलत है, राइट। एंडेमिक स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ ख़त्म होने के हैं, राइट, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही ऐसे जैसे देखो डायनासोर्स अभी हम सिर्फ स्टोरीज़ में सुन सकते हैं या फिर पिक्चर में ही देख सकते हैं, बाकी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हमने कुछ ऐसे किया होता कि उसको हम बचा सकें, तो आज हम रियल डायनासोर्स को देख सकते थे, राइट। इसी तरह उसके जैसे दूसरे जानवर भी अभी लिप्त ना हो जाए, तो बचाना चाहिए हमें उसको, राइट। Soon the group quietly enters the deep forest and children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusive in a particular area and they are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or a plant may be endemic to a zone, a state or a country. Madhavji shows, देखो ये एक ऐसी जायंट स्क्विरल है, राइट, वो अभी लिप्त होने लगी है, वो सिर्फ उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही पाई जाती है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि जानवर जो है, हमको एक विचित्र किस्म का जानवर दिखता है, वो ख़तरनाक नहीं भी हो सकता है, राइट, लेकिन क्योंकि हम डरते हैं उससे कि कहीं वो हमको मार न डाले, हमको खा न जाए, तो हम उसको मार डालते हैं, जबकि वो जानवर तो नुकसान पहुंचा ऐसा होता भी नहीं है कभी कभी, राइट। तो ऐसा ही करके जानवर नष्ट होते जाते हैं। Madhavji shows the sal and the wild mango figure 7.3 as two examples of this. देखो ये दो एग्जाम्पल हैं वाइल्ड मैंगो की, वो भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि लोग काटते जा रहे हैं, राइट। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, बिसन, Indian giant squirrel and the flying squirrel are endemic fauna for this area. फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स एंड फाउना मतलब होता है जानवर्स। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of the new species may affect the natural habitat of the endemic species and endanger their existence. अभी उनके जो एरिया होते हैं उसमें हम दूसरे जानवर की पॉपुलेशन बढ़ा देते, तो हो सकता है एक जानवर दूसरे जानवर को भी ख़त्म कर दे, सिर्फ इंसान ही ख़त्म करे ऐसा नहीं होता है। What is species? Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. This means the members of a species have common characteristics, right? अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? Soon Paheli sees a board with the Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains that killing, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. तो जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हो, वहाँ पर आप अगर जाते हो, जानवर को परेशान करते हो या पकड़ते हो या मार डालते हो, तो आपको जेल भी हो सकती है, राइट।
Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection, suitable living conditions to the wild animals. He also tells them that people living in the wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them, and children are reminded for their visit to the zoo. They recall the zoo are also places where animals receive the protection. जैसे जैसे जू होता है वहाँ पर जानवरों को बचाया जाता है, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में भी जानवरों को और प्लांट्स को बचाया जाता है। लेकिन आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो लोग कभी कभी चोरी चोरी चुपके चुपके उस एरिया में जाते हैं और वो जानवरों को भी मारते हैं, शिकार करते हैं, वो सब एक्टिविटी करते हैं। तो ये भी एक खतरा है उनके लिए, राइट। National Park. On the roadside there was another board on which was written Saputara National Park. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect the whole sets of ecosystem. They preserve the flora, fauna, landscape and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national parks in India, right? तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ ऐसे गुफा जैसे लैंडस्केप जो होते हैं, जहाँ तालाब होते हैं या नदी जैसा होता है या स्ट्रीम होता है, झरना होता है पानी के बने हुए, ऐसी सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है. As children move ahead, they see a board with the Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explained that the Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. अभी देखो पहले क्या होता था कि टाइगर्स ख़त्म होते जा रहे थे, राइट. अचानक से पता चला कि इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो हम लोग जानवरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाते हैं. उसको जानवरों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका नाम है सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, राइट. सो टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. अगर इसी रफ्तार से ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमको जानवरों, टाइगर को देखने के लिए भी वो हमको रियल में नहीं दिखेगा, बल्कि सिर्फ पिक्चर्स में या जू में ही देखने को मिलेगा फिर. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes and barasingas were also found in the Satpura National Park. Animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. Bujo is reminded that the dinosaurs will become extinct a time ago. Survival of some see, these are the pictures of some rare animals, Barasinga, right, have become difficult because of the disturbance in their natural habitat. Professor Ahmed tells that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed, right. Madhavji tells people पहली that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. हाँ, वो सही भी है. स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं उसको लोग जल्दी से पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, छुपा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन बड़े जानवरों को ले जाना इतना आसान नहीं होता है. तो छोटे जानवर जो हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं. At times we kill the snakes, frogs, lizards, bats and owls restlessly without realizing the importance in the ecosystem. By killing them we are harming ourselves.
They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form the part of the food chains and the food webs about which you learned in class 6. जानवर कोई भी हो, राइट, जंगली हो या पालतू हो या भले वो वाइल्ड ना हो, सबका एक इम्पोर्टेंस होता है हमारी फॉरेस्ट लाइफ में, फूड चेन में, फूड वेब में, राइट। आपने स्टैंडर्ड में देखा होगा 7th में कि फूड चेन होती है और एक फूड वेब होता है। अभी देखो, प्लांट्स को अगर हम लोग हटा लेते हैं, राइट, तो क्या होता है कि हर्बीवरस जानवर जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, राइट। तो वो जानवर नहीं बचेंगे, वो मर जाएंगे। तो उनको जो खाते हैं कार्निवरस एनिमल्स, उनका क्या होगा? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्निवरस जो मांस, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप प्लांट काटते हो तो आप सिर्फ हर्बीवरस जानवर को नहीं मारते हो, बल्कि कार्निवरस एनिमल को भी मार देते हो, राइट। सो जानवर चाहे कोई भी हो, राइट, या बर्ड या कोई भी हो, सांप हो, कोई भी हो, सबका कहीं ना कहीं एक रोल होता है, राइट, फूड चेन में या फूड वेब में। अगर उस जानवर को वहाँ से हटा दिया तो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। आपको क्या लगता है, जो क्रिएटर भगवान जो है उसने ऐसे ही बना दिया होगा उस जानवर को? उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता ही है, भले हम नहीं समझते हैं उसका अभी, राइट। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरों को नहीं देता है। जानवरों को कंपेयर में भी या इंसान के कंपेयर में भी, अगर इंसान और जानवर की बात करेंगे तो लोग पहले बोलेंगे नहीं, इंसान को बचाओ, जानवर को बचाने की, जानवर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर जानवर कम हो गए, 2 इंसानों के बीच में किसी एक को बचाने की बात हुई तो जो ऐसे बोलते हैं ना, अमीर होगा या दूसरों को मदद करता होगा या पैसे वाला होगा, उसको बचाते हैं। ये गरीब हमारे काम नहीं आएगा, उसको मार डालते हैं। सो दिस इज़ आवर बिलीफ एंड आवर थिंकिंग दैट हैज़ लीड अस टू दिस, राइट। बाकी पूरी सृष्टि में हर एक जीव जो है, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो या इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हेल्दी हो, वीक हो, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंस होता है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। An ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम में ना सिर्फ प्लांट्स आते हैं बल्कि एनिमल्स भी आ जाते हैं, जगह भी आ जाती है, क्लाइमेट भी आ जाता है, राइट। ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना पड़ता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।